Good afternoon, students. Welcome to our LFCS online class. In the last class, we had discussed about industrial regions, not only industrial regions but also industrial regions of the world, and also side by side we had studied about industrial regions of our country. Okay, means industrial regions of India. Okay, you have come to know about all the industrial regions. I hope you have studied all the industrial regions of our country. Okay, and now today we are going to start a new topic, that is distribution of major industries. In this topic we will study about some important industries, that is first one, iron and steel industry, and also about the changing location of iron and steel industry. You know that in the previous class we had studied about some factors for the location of industries. Okay, and when time passes away, the factors for location of industries also changes according to time. Okay, so in this topic we will study what were the changes took place in the establishing of factories, where most of people like to establish their industries. Earlier they used to establish their industries near the area where there is availability of water, availability of raw material, availability of water supply, electric supply, transportation, bank, and many things. Okay, but now when time passes, all the things started to be changed. Okay, so let us see how these changes took place from 18th century to day. Okay, so for this you have to open your book and go through your books. First, distribution of major industries. In major industries, we will discuss about iron and steel. One thing more important, that iron and steel is also known as termed as feeder industry. We call it as feeder industry. Why we call this as feeder industry? So let us see here. Iron and steel industry is backbone of any country. You know that iron and steel is one of the backbone of not only for our country but also for the backbone for other countries. Okay, जैसे सपोज हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम इसी की हेल्प से खड़े हैं. ओके, एंड अच्छे से बैठ पाते हैं पोस्चर में, और जो कि हमें स्टैंडिंग करने में, वॉक करने में, और बैकबोन हमारी जिस तरह से हेल्प करती है, उसी तरह से इंडस्ट्री जो है वो किसी कंट्री को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में हेल्प करती है. ठीक है, ओके, गॉट इट ना. नाउ, iron and steel industry is the backbone of any country. Iron and steel is also termed as feeder industry. I just told na, iron and steel is also known by other name, that is known as feeder industry. Because why? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज आइदर मेड अप ऑफ स्टील और आयरन. आपके डे टू डे लाइफ में आपने कई सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो कि आयरन या स्टील से बनी होती हैं. ओके, now because the products of this industry are used as raw materials. Why? Because the product which is produced by this industry is also used as a raw material for the other industry. किसी और इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के काम में लाया जाता है. Iron and steel is regarded as heavy industry as it uses extensive raw materials such as
Iron and steel industry is also known as heavy industry. Why it is known as heavy industries? Because it uses large amount of raw materials. इसको क्यों हम इस तरह से कहते हैं? Because these industries require raw material in huge or large quantity, such as coal, manganese, limestone and iron ore in large quantity. सबकी मात्रा कितनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. The products of these industries are bulky and the product also not small but large and heavy. Not only large but also it's too heavy to carry. We can't carry with our single hand. We must have to take help of a trolley or other laborers or machines. The products of yes, throughout the world, iron ore is extracted. You have seen that almost in all over the country, or you can say not only in our country, but we should talk about world that iron ore is extracted. निकाला जाता है, isn't it? 90% of it is made into steel or ज़्यादा से ज़्यादा means maximum 90% वी यूज इट एज ए स्टील. हम किसके रूप में लाते हैं इसको? स्टील के रूप में. देयर आर 3 मेजर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम ओर टू स्टील. देयर 3 स्टेजेस क्रॉस करने पड़ते हैं ओर को किस रूप में लाने के लिए? स्टील के रूप में लाने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल स्मेल्टिंग इन इलेक्ट्रिक फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस. पहले हमको इसको गलाना पड़ता है. कैसे गलाएंगे? सपोज आप एक होगा, इसमें फन होगा, इसमें आप रख देंगे, कोयला होगा, इसमें जलता रहेगा. वो क्या होगा? उसमें फर्नेस में वो हीट होता रहेगा, मेल्ट होता रहेगा. प्यूरिफिकेशन इन द स्टील फर्नेस. फिर इसको हम प्यूरिफाई करेंगे किस बर्तन में? स्टील के फर्नेस में उसको हम प्यूरिफाई करेंगे. शेपिंग द प्रोडक्ट्स इन रोलिंग मिल्स. और फिर इसको हम रोलिंग मिल्स में ले जाते हैं जहाँ पर हम इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप देते हैं. ठीक है. द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग स्टील इट एज फॉलोज. जो मेकिंग ऑफ प्रोसीजर ऑफ स्टील है वो फॉलो होता है. कैसे? मोल्टेन आयरन इज पोर्ड इनटू कंटेनर्स. एक कंटेनर में क्या डाला जाता है? मोल्टेन आयरन उसमें डाला जाता है. एंड टू मेक पिग आयरन. इसको क्या बनाने के लिए? कच्चा लोहा बनाने के लिए उस कंटेनर में डाला जाता है. सेकेंड, पिग आयरन इज अ हार्ड एंड ब्रिटिल फॉर्म ऑफ अ आयरन. पिग आयरन क्या है? एक ब्रिटिल फॉर्म ऑफ अ आयरन है. सम कार्बन इज मिक्सड विद पिग आयरन. कुछ पिग आयरन कच्चे लोहे के साथ हम क्या कुछ मिक्स करते हैं? कुछ कार्बन मिक्स करते हैं टू गेट मेक स्टील. स्टील बनाने के लिए कुछ कार्बन का भी हम यूज करते हैं. दिस स्टील कैन बी फर्दर ड्रॉन इनटू पाइप्स. फिर इस स्टील को हम किस में डालते हैं? पाइप में डालते हैं. वायर्स एंड शीट्स. फिर किसका किसका रूप बनाते हैं? पाइप का रूप बनाते हैं, ट्यूब्स का रूप बनाते हैं, वायर्स का एंड शीट्स. China, Japan and USA are the foremost producers of steel in the world. The 3 most important producer of steel in the world. First one is China, Japan and USA. स्टील को हम कौन कौन सा रूप देते हैं? पहले क्या है? ट्यूब्स, वायर्स एंड शीट्स. जापान. इन जापान द कोरबी ओसाका रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर स्टील. जापान में कौन सा जगह है? कोरबी ओसाका. दैट इज फेमस फॉर स्टील. ओके. एंड प्रोडक्शन. यूक्रेन इज अ बिग प्रोडक्शन सेंटर ऑफ स्टील. यूक्रेन भी क्या है? एक बिग सेंटर है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील. इन जर्मनी स्टील इज
produced in Ruhr-Saar Basin and in the USA. Detroit and Pittsburgh are the most prominent steel producing centers. सेकेंड मोस्ट क्या है? डिट्रॉयट। आप नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो इसको आप डिटेल में हम लोग पढ़ा जाएगा थॉरोली, ठीक है। डिट्रॉयट एंड पिट्सबर्ग, दीज आर ऑल्सो मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। In India, iron and steel industry has developed by taking advantage of raw material. हमने इंडिया में भी स्टील का प्रोडक्शन शुरू किया, किसका किसका एडवांटेजेस लेकर, किसका किसका बेनिफिट लेकर के। फर्स्ट, रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट्स। The main iron and steel production centers in India are, जो इंडिया में मेन सेंटर्स हैं कौन कौन से हैं? यू कैन सी इन द मैप। आपको आपके बुक में मैप ऊपर दिया गया है ना, आप मैप में देखते जाइए। भिलाई, आपको भिलाई दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है ना, दुर्गापुर भी दिखाई दे रहा है आपको, राउरकेला भी दिखाई दे रहा, ऊपर एक ही साइड में है। उड़ीसा में नीचे आइए, दिखाई दे रहा है उड़ीसा में राउरकेला। जमशेदपुर आपको दिखाई दे रहा है झारखंड में, आपको बोकारो भी झारखंड में दिखाई दे रहा होगा। कुल्टी, आप वेस्ट बंगाल में जाइए, कुल्टी भी दिखाई दे रहा है आपको। सेलेम, विशाखापट्टनम भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया। विजयनगर भी दिखाई दिया एंड भद्रावती, सारी प्लेसेस आपको दिखाई दे दिए ना। यस, यू हैव टू फील ऑल दिस प्लेसेस इन अ मैप। नाउ चेंजिंग लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्या उस समय की इंडस्ट्रीज लोकेशन की उसमें कुछ खराबी थी क्या? कि इस फिर क्या होने लगा? चेंजिंग लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील। देखा जाए, द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, लगातार चेंज होते जा रहे हैं। किसके लोकेशन में? आयरन एंड स्टील के लोकेशन में लगातार चेंजेस आ रहे हैं। बिफोर 1800 AD, it was established where raw materials, power supply and running waters were easily available. बिफोर 18th सेंचुरी के पहले, 18th सेंचुरी AD में क्या होता था? हम जहाँ वाटर सप्लाई था, पावर सप्लाई था, रॉ मटेरियल था, चीप लेबर्स थे, वहाँ पर हम इस्टेब्लिश करते थे। बट नाउ सिनेरियो इज टोटली चेंज्ड। And later the areas nearby coal fields, and after that they started to establish their industries. The areas where coal fields are near canals and railways gain priority. पहला प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? कोल फील्ड्स, रेलवेज एंड कैनल्स। After 1950, iron and steel industry began to be located at large areas of plain level. अब सीन यहाँ तक आ गया कि 1950 के बाद से इंडस्ट्रीज हम प्लेन एरियाज में लगाने लगे। अब ये नहीं पता है कि प्लेन एरियाज में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने से क्या हार्म हो सकता है, ठीक है। आपको बाद में पता चलेगा, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएगा, तब सुनिएगा, ठीक है। यस, आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगन टू बी लोकेटेड एट लार्ज एरियाज ऑफ प्लेन लैंड नियर सी पोर्ट्स। कहाँ पर लगाए जाने लगे? नियर सी पोर्ट्स, बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स टुक अ लार्ज शेप and overseas import of iron ore was required. अब बाहर से आना जाना भी करना था, तो आने जाने के लिए सी पोर्ट के पास होना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से इन जगहों पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। नाउ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अब हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को पढ़ चुके। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। The art of weaving clothes from yarn is practiced from ancient times. धागे से कपड़े बुनना, ये प्रक्रिया हमारी बहुत पुराने समय से ही चली आ रही है, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द
oldest industries in the world. सबसे oldest you can say that is the oldest industries is only the cotton textile industry in the world, not only in India but in the world. ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन इज फाउंड इन, सबसे पुराना जो एविडेंस प्रूफ हमें मिलता है कॉटन का कहाँ मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 5000 ईयर्स एगो. सिंस देन कॉटन इज बीइंग स्पन, उसी समय से कॉटन के काम में हम लग गए. एंड वुवन बाय हैंड्स, फिर हम मशीन हाथ से बुनाई करने लगे. यूजिंग लूम्स, क्या यूज करने लगे, हाथ का यूज करने लगे. एंड स्पिनिंग व्हील्स, यानी कटाई करने के लिए पहिए का यूज करने लगे. ओके, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड एज अ कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटन इंडस्ट्री को हमने किस रूप में स्टार्ट किया, घर से हाथ से बनाते थे ना, तो हम ये हाथ से मशीन में तो जाएंगे ना, घर से ही बनाएंगे. तो हमने इसको क्या नेम दिया, कॉटेज इंडस्ट्री. जो कॉटन इंडस्ट्री है हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में स्टार्ट होती है. बट इन मॉडर्न टाइम्स इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री एम्प्लॉइंग इनॉर्मस नंबर ऑफ वर्कर्स. ना, लेकिन इस समय क्या है, कॉटन इंडस्ट्री एक बड़े इंडस्ट्री के रूप में उभर करके आई है, जो कि क्या है, इट एम्प्लॉयज numbers of workers. Series of invention in England lead to the development of cotton. कई सारे डेवलपमेंट किए गए, किसके डेवलपमेंट के लिए, कॉटन. इन इन्वेंशन इन इंग्लैंड लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की. द इन्वेंशंस आर लिस्टेड बिलो. क्या क्या की, फर्स्ट क्या इन्वेंशन हुआ, फ्लाइंग शटल 1733, कार्डिंग मशीन 1748, स्पिनिंग म्यूल 1775, पावर लूम 1785. ओके, द लास्ट 200 years changed the scenario of cotton industry throughout the world. लास्ट 2 years से 200 years से जो कॉटन की सिनेरियो है, सीन है, बिल्कुल ही टोटली चेंज्ड है. ओके, नॉट ओनली इन इंडिया बट एज अ होल of the cotton industry throughout the world. The textile mills grew at a fast pace in the entire world. यानी कॉटन इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में बहुत ही स्पीड से फैलती जा रही है. ओके, वी विल सी साउदर्न पार्ट ऑफ जॉर्जिया इन द यूएसए is the main area of its cotton producing belt. आप देखेंगे जॉर्जिया जो इन द यूएसए became the very comfortable place for the producing of or you can say cotton producing belt. Cotton is also produced in North and South Carolina, USA. Moscow is an important textile producing center in Russia. Cotton industry developed in Osaka, Nagaya region in Japan. These two places are very famous in Japan for the production of cotton. In England, Manchester and Liverpool have the largest number of textile mills. And England, while talking about England, Manchester and Liverpool became the two most important center of cotton producing. Okay, हम लोगों ने वर्ल्ड का देखा, and tomorrow we will discuss about some important cotton producing areas of our country. Okay, so today only this much. Tomorrow we will discuss about our country's cotton producing areas. Okay, thank you.